as a one as a part of the your syllabus. So we have studied the economics and we have studied the accountancy. Directly on or indirectly, this all subject is related to the valuations. ऐसा नहीं बोल सकते कि इससे valuation से कोई लेना देना नहीं है. And statistic is one of the more important when you are doing the any calculations. Okay, maybe a value of the land and building or maybe a value of the plant and machinery. आपका जो conclusion many times is just like a estimated amount. जैसा मार्केट वैल्यू में डेफिनेशंस में है, तो एस्टिमेटेड अमाउंट और फेयर वैल्यू की डेफिनेशंस में दैट इज अ एस्टिमेटेड प्राइस. बट हाउ यू एस्टिमेट दैट एंड व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड योर एस्टिमेशंस. सो आपने जो भी वैल्यू बोल दिया कि वैल्यू इज 100 रुपीज, सो हाउ 100 रुपीज, हाउ यू अराइव एट द 100 रुपीज. So many times this statistics will help to you. In India, normally 99% valuer do not use their statistics because of lack of the data. They are not collecting the sufficient data, which will become a base of the any valuation assignment or exercise. So theoretically, all the data collected must be passed through the some statistics. And you have to reach the conclusion. That is a logical conclusion. Many times related to the valuations, they are saying that valuation is not a art or not a science. It's a combination of the art and science. So part of the science is the statistics. And how you are deriving and how you are making the assumptions, how you are designing, that is a part of a little bit art. Okay. So as a part of the statistics, our syllabus that is available to you. So there is no, but statistics start from the collection of the data. For the valuation, you require the collection of the data. Maybe during the valuations courses analyzing, you will check the market approach, cost approach, income approach, what the data you required to do the valuations. Okay, so processing of this data, who is the conclusion? Even from the statistics, you can understand what is a error of your conclusion. जैसे आपने 100 रुपया बोल दिया, whatever the data that you are gathering, उससे आपकी error कितनी है, that you also you estimate. Just like हम बोलते हैं normally कि भाई दो valuer के opinion में that may be a differ up to the 50%, 15% तक होना, that is okay. So ये आपका जो collection of the data है, उससे जो भी conclusion दिया कितना deviate हो सकता है, that is also you can find the statistics. Many other logical decision and reasoning you can do with the help of the statistics. सही है. तो ये पूरा जो है चैप्टर आपके कैलकुलेशंस पोर्टफोलियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड बेसिकली टू डेवलप द बेसिस, अगर आपको कोई डिफाइन करता है तो क्लियर. सो हमारा वैल्यूएशन क्या है कि it is a process to establish the value of the asset or a liabilities. Okay, so process to establishment, clear. Yeah, we can go say amount represent the opinion. तो जब भी आप ये amount represent opinion करते हो, तो you have to go with one sequence. भाई ये काम पहले करना है. तो जैसे हमारा valuation कोई assignment है या engagement है, तो क्या होता है कि we have to, हमारा एंगेजमेंट होगा, मतलब आपको कोई अपॉइंट करेगा, कोई बोलेगा, मे बी वर्बली, मे बी रिटर्न, आप रेम्युनरेशंस क्या काम करना है वो डिसाइड करोगे. देन यू आर साइट इंस्पेक्शन एंड डेटा कलेक्शन फ्रॉम द साइट इंस्पेक्शंस. देन you are doing a macro and micro identifications. Okay, then you again the data collect from the market. So two data you are collecting, data from the site inspections, that is whatever the available on the site, even you are discussing with the client, and you are collect the data for the market survey. ये market survey बहुत limited करते हैं हम, where we are lagging. So जो भी data आपके पास available है, उसके basis पे you are selecting the approach and methodology, and आप conclusion करते हो. तो एक simple सी बात है कि जितना data collection आपका अच्छा, उतना conclusion आपका अच्छा होगा.
और यही स्टेटिस्टिक भी है. So statistic, what you mean by the statistic? So it is a science of planning, study, experiment, obtaining data, organizing, summarizing, presenting, analyzing, interpreting, and drawing a conclusion. Whatever we are doing the valuation, same definitions is a definition of the statistics. Data collect करते हो, उसे समराइज करते हो, उसे अरेंजिंग करते हो, डेटा से इंटरप्रेट करते हो और कंक्लूजन के बेस पे आते हो. Okay, so it must be to have a little bit knowledge of a statistics if you are doing want to do good practice. तो यहाँ पे जो पहली बात होती है वो डेटा की होती है. ओके, सो हमारे डेटा दो टाइप्स के हो सकते हैं नॉर्मली ना फील्ड ऑफ द वैल्यूएशंस. क्वालिटी टाइप and quantity type. Okay. Quality means of it represents something about the quality. जैसे भाई एरिया कैसा है, पोस्ट एरिया है, पुअर लोअर क्लास है, पुअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, पीपल की इनकम फैचिंग कैपेबिलिटी क्या है दिस एरिया में, कौन से प्रॉपर्टी सेल आउट हो रहे हैं, दैट इज शोज द क्वालिटी. क्वांटिटी गिव्स सम नंबर. भाई 2 BHK फ्लैट कितने में सेल आउट हो रहा है, 3 BHK, 4 BHK, 1 BHK, टेनामेंट, बंगलो, ऑफिस, वाटर कितने में सेल हो रहे हैं और कितना सेल हो रहा है, दैट नंबर. सो क्वालिटी एनालिसिस गिव यू सम डेटा कलेक्शन बेस्ड ऑन द क्वालिटी. जैसे सेक्स, मेल और फीमेल, रिलीजियस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाटएवर, लिटरेसी, undergraduate, graduate, intelligence, etc. So based on some quality, you are collecting the data. Quantity means of based on some number, height, weight, age, income. That's you are measuring in a numbers. That is a quality. Then geographically, just like a within a subject property area, उसके neighborhood areas, पूरे सिटी के डेटा, पूरे तहसील के डेटा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेटा, पूरे स्टेट के डेटा, पूरे कंट्री के डेटा, दैट्स अ जियोग्राफी. विदिन विच जियोग्राफिक्स यू आर डूइंग अ मार्केट सर्वे. देन कम अ क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल का सिंपल मीन है इन अ ऑर्डर. जस्ट लाइक आई एम कलेक्टिंग द डेटा ऑफ अ सिटी 15 डिकेड, सॉरी 5 डिकेड, 5 डिकेड का मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ. सो आई एम कलेक्टिंग द डेटा 2071 to 2080, 81 to 90, 91 to 2000, 2001 to 2010, 2010, 11 to 2020. In some order, I am collecting the data. That's a chronological. Maybe a day wise, maybe a month wise, maybe a year wise, maybe a week wise, maybe a decade wise, or anything. But in a chronological order, up to down or down to up. Okay. So data may be your qualitative, which reflect the quality. Data may be quantitative, which reflect the number. Data may be a geographical, which reflect your boundary के ये data है वो कितने geographies के ले. Data may be a chronological, that may be a in a order. Again, we classify our data in a categorical और numericals. Okay, जो हमारे क्वांटिटी डेटा थे दैट इज अ न्यूमेरिकल, और जो हमारे क्वालिटी डेटा थे दैट मे बी अ कैटेगराइज. सो कैटेगराइज में मे नॉमिनल और ऑर्डिनल, न्यूमेरिकल में मे डिस्क्रीट और अ कंटिन्यू. अगेन कंटिन्यू में मे बी अ इंटरवल और अ रेशियो. तो ये सिंपल चीज है. जैसे मैं बोलूं कैटेगरी डेटा हम कलेक्ट करते हैं कि भाई इंडिया का टेम्परेचर कितना. सो यू कैन नॉट डिफाइन इंडिया का टेम्परेचर जस्ट लाइक अ 30, 31, 32. आप बोलोगे भाई इंडिया का टेम्परेचर वरी होता है 25 to 35. दैट्स अ कंटिन्यूअस डेटा इन अ इंटरवल.
बट स्पेसिफिक बात होती है भाई, इंडिया में या अहमदाबाद में, बड़ौदा में, दिल्ली में, कहीं पे आज का टेम्परेचर क्या है अभी का, स्पॉन्टेनियस, सो दैट यू कैन डिफाइन कि भाई 35, 42 और वट एवर 25, और आज का टेम्परेचर क्या रहा, तो दैट इज योर कंटिन्यूस में हो जाएगा कि भाई आज का टेम्परेचर रात को था 12 डिग्री और मैक्सिमम हुआ 35 डिग्री, तो आज का टेम्परेचर 12 to 35 डिग्री। ओके, इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक वाला चीज नहीं है। सो लेट्स क्लासिफाई दिस डेटा। जो आपके कैटेगोरियल डेटा होगा, रिप्रेजेंट द characteristics just like a quality data. Nominal data represent discrete unit and used to label the variables that have a no quantitative, just like a gender, male or female, language, Gujarati, English. These are the qualitative data which are further defined as a categorical data and nominal data. By जो ordinal data है आपका, represent discrete and order unit. Order unit मतलब just like a chronological combination of a qualitative data and chronological order. जैसे education level, so education is your quality. When you are arranging this in a chronological order, then it's become a nominal data, sorry, ordinal data. जैसे education, in education you can class like secondary, higher secondary, graduate, postgraduate, that like. While in a gender, you cannot make a class. There's a 2 gender or 3 gender only. While a language, you cannot bring in a rank hierarchy, good language to bad language like that. All language is a language. No one is a good or not. Yeah, but same time, to learn the language, but that is for the specific person. You can change, make the hierarchy. This is some people in North India. For North India people, it is very difficult to learn the Kannada or Telugu. Okay, same for the South India. Many times it is very difficult to South Indian to learn Hindi or local language, just maybe a Punjabi or anything else. Okay, so when you create some hierarchy, that is a standard hierarchy, that is adopted and accepted by each and everyone, so your data become ordinal. So qualitative data that classify as the further categorical data. If you can arrange in a chronological way, up to down or down to up, then it is a ordinal data. And if you cannot arrange, then it is a nominal data. Okay. Same numerical data. Simple numbers. That is a quantitative data. Quantity. आप गिन सकते हो. Okay. So again, it is a discrete data and continuous data. So discrete data means of if data can only take a certain value, जिसकी value fix है, within a one number you can define. जैसे height of me, you can define in a value 5.11 inch. So it is a discrete data. There is no alternative possible. If you anyone can describe in a single thing, then it is your discrete data, one number. Continuous data represent measurement and therefore their value can be not count but can be measured. Okay, count नहीं हो सकती है, measure हो सकती है. जैसे height cannot be count, it can be measured. So that is your continuous data. Then continuous data, interval data represent order unit that have a same difference. It contains numerical value that are the order and whether know the exact difference between the two values. So जैसे हमने बोला कि temperature in a सूरत of a day या of a year. So आप बताओगे भाई +12 से
plus 45. You measure and give in a range interval. So हमारे वैल्यूएशन रिपोर्ट में भी दो तरह से हम वैल्यू दे सकते हैं. दैट इज इन अ डिस्क्रीट डेटा और दैट में बी अ इंटरवल डेटा. भाई 100 रुपये मेरी वैल्यू, दैट इज योर डिस्क्रीट. My value is in range of the 95 rupees to 105 rupees. That is your interval data. Okay. Point estimations, interval estimations. Same ratio. Okay. So ratio order the unit intermediate value. Height of a classroom. अब क्लास की कोई हाइट नहीं होती, बट सभी बच्चों की हाइट मेजर की जाती है और उसकी एक इंटरमीडिएट वैल्यू, दैट इज द एवरेज वैल्यू हम लेते हैं. तो वी कैन से द हाइट ऑफ अ क्लासरूम इज 4.5 feet. Income of the Indian people, it is 2 lakh rupees per annum. Now 2 lakh rupees per annum मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक इंडियन की इनकम 2 lakh rupees per annum होगी. भाई हमने इंडियन के जितने भी है उसका इनकम काउंट किया और उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड की, and that's why we are saying that this is 2 lakh rupees per annum. So that is a ratio data. Okay, so these are the types of data. Normally categorical data and numerical data. Your categorical data may be a nominal data that shows the quality only, and you not categorize in a chronological order. Ordinal data that represent the characteristic quality and that you can rearrange in a chronological way. Okay, up to down or down to up. Numerical data that may be a discrete that you can count only, you cannot measure. Continuous data that you cannot count but a measure. Interval data, whatever you have measured, that you are showing in a range. Temperature of the Surat, range. Temperature of the Delhi, range. And when ratio data, when you are taking the average out, भाई दिल्ली का आज टेम्परेचर 12 से 35 तक डिग्री का रहा, मतलब जो एवरेज आया मेरा इट इज 26. सो दैट इज योर रेशियो डेटा. यू टेक द लोएस्ट डेटा, हाईएस्ट डेटा और उसका रेंज कर दिया आपने, डिवाइड बाय 2 कर दिया. दैट इज योर रेशियो डेटा. फॉर द रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा, जो नॉमिनल डेटा है, व्हाट यू मीन बाय द नॉमिनल डेटा नाउ? नॉमिनल डेटा का मतलब क्या है? जिसको हम हायरार्की में नहीं क्लासिफाई, that has no order, order में नहीं ट्रांसफर, that cannot be arranged in an order. that cannot be arranged in an order. It's a qualitative and cannot be arranged in order. Yeah. So when you want to represent, that you can represent in the pie chart or bar chart. So pie chart में क्या होगा? Concentrations 50%, 20% or less. Just like we are getting the opinion poll. अभी यूपी में चल रहा है, तो यूपी में कोई भी ओपिनियन पोल में क्या आता है? भाई बीजेपी को मिलने वाली है 35% सीट, कांग्रेस को मिलने वाली है 2% सीट, सपा को मिलने वाली है 20% सीट, लाइक दैट. सो इट इज अ पाई चार्ट. सेम थिंग यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द बार चार्ट. भाई सबसे ज्यादा जो सीटें मिलने की उम्मीद है, इट इज अ बीजेपी और अ कांग्रेस और एनीवन. जो अदर पार्टीज है उसको 2%. सो दैट इज अ यू कैन रिप्रेजेंट बाय अ बार चार्ट. सो दोनों का इंटरप्रिटेशन एक ही है. सेम जो भी ऑर्डिनल डेटा होता है, जो डेटा इन अ रेंज होता है या क्रोनोलॉजिकल होता है, यू कैन रिप्रेजेंट इन अ बॉक्स प्लॉट और अ हिस्टोग्राम. ओके, बॉक्स प्लॉट मतलब क्या होता है? दिस इज डेटा. जैसे दिल्ली का टेम्परेचर 12 से 35, सो जो ये लोअर लिमिट है ये वाला, वो 12 दिखाता है, और जो अपर है ये 35 दिखाता है. दूसरे दिन दिल्ली का टेम्परेचर क्या रहा? 12 से 30.
तीसरे दिन दिल्ली का टेम्परेचर क्या रहा, 14 से 32। सो जो लोअर लिमिट है वो बताएगी आपकी 14 लोवेस्ट वैल्यू, एंड जो अपर है बॉक्स का वो आपकी हाईएस्ट वैल्यू दिखाएगी. सो दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन अ बॉक्स प्लॉट. ओके. नॉर्मली जो शेयर मार्केट में ग्राफ्स देखते हैं तो उनका चार्ट यही होता है, भाई आज के दिन में रिलायंस का प्राइस क्या रहा, तो भाई रिलायंस का डाउन प्राइस था 2000 और हाईएस्ट प्राइस था 2200. सो दे आर इंडिकेटिंग द वैल्यू, आज की डेट की वैल्यू ये रही. दे आर यूजिंग द बॉक्स प्लॉट. हिस्टोग्राम क्या दिखाता है, इट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो यहाँ पे जो होती है वो रेंज होती है, एक वीक, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, उसमें क्या डेटा रहे. okay? जैसे ये होगा, हम लेते हैं फर्स्ट वीक. सो फर्स्ट वीक में कितनी सेल हुई, ये फिर ये डेटा, सेकंड वीक में कितनी सेल हुई, थर्ड वीक में कितनी सेल हुई. तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना है आपको कुछ कैसे हैपन हुआ फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड अभी तक, दैट यू कैन पुट डाउन इन अ हिस्टोग्राम plot. So data and its graphical presentations. What data you have to collect, which data you have to collect, that is a आप किसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. okay? फिर आता है आप कैसे डेटा कलेक्ट करते हो. सो मे बी अ डेटा बाय द पॉपुलेशंस या डेटा बाय द सैंपल. अब यही बात है कि भी यूपी के इलेक्शंस की क्या होता है, ओपिनियन पोल आती है कि भाई भाजपा को मिलने वाले 40% वोट, बसपा को मिलने वाले 35% वोट, और अदर पार्टीज को 10% वोट. तो इसका मतलब क्या होता है, या क्या जो बंदा पूछता है वो हर एक वोटर को जाके पूछ के आता है, भाई तुम किसको वोट देने वाले हो, तुम किसको वोट देने वाले हो. तो वो बंदा किसी सब वोटर को पूछने नहीं जाता. वो क्या करता है, कोई स्पेसिफिक एरिया, जियोग्राफिकल लोकेशन सिलेक्ट करता है और उसमें रैंडमली सिलेक्ट करके वोटर को पूछता है. सो दे आर टेकिंग डेटा कलेक्शन बेस्ड ऑन द सैंपल. सिंपल बात है, आज मुझे लखनऊ में कौन जीतने वाला है, तो मैं लखनऊ के पूरे वोटर्स का इंटरव्यू नहीं करूंगा कि भाई आप किसने वाले, दैट इज नॉट आल्सो पॉसिबल. मैं क्या करता हूँ, लखनऊ में मैं डिसाइड करता हूँ कि आई एम टेकिंग विल टेक अ 25,000 व्यू ऑफ अ वोटर. फिर मैं क्या करता हूँ, 25,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, भाई नॉर्थ लखनऊ, साउथ लखनऊ, ईस्ट लखनऊ, वेस्ट लखनऊ, और सभी में मेरा जो 25 थे उसमें मैं डिसाइड कर लेता हूँ भाई हर एक में से मैं 5-5 हजार लोगों को पूछूंगा या 6,000 लोगों को पूछूंगा. सो दे आर कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन द सैंपल. ओके, सो आप डेटा कलेक्शन सैंपल पे कर सकते हो, या यू कैन कलेक्ट द डेटा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब आप सारे के सारे डेटा कलेक्ट करते हो. लखनऊ के सारे वोटर को जाके पूछते हो पे आप किसको वोट दोगे, दैट इज अ पॉपुलेशन डेटा कलेक्शन. नॉर्मली हम जब वैल्यूएशन करते हैं, जैसे हम कोई लैंड का, फ्लैट का या मशीनरी का वैल्यूएशन करते हैं, ओके. सो वैल्यूएशन करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, सैंपल बेस्ड डेटा कलेक्ट करते हैं कि भाई उसके आजू बाजू में जो भी लैंड है या फ्लैट है या बंगलो है या उसके जैसा मशीन है, कितने में सेल आउट हो रहा है. ओके, तो दैट वी आर कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द सैंपल. अगर हम पूरा डेटा कलेक्ट करें कि भाई दिल्ली के कनॉट पैलेस में जो भी कमर्शियल शॉप है, सारी की सारी शॉप कितने में सेल हो रही है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक चीज का आप डेटा कलेक्ट करते हो, दैट इज अ कॉल ऑफ पॉपुलेशन. सो डेटा दैट यू कैन मेक कलेक्ट यूजिंग द पॉपुलेशन. आप सबका डेटा कलेक्ट करो, एंटायर आपके रीजन में जो भी कुछ आता है, जो भी अंडर स्टडी है, वो अंडर स्टडी से डेटा कलेक्ट करो, या यू कैन कलेक्ट डेटा बाय वे ऑफ द सैंपल. उसमें से कुछ सिलेक्शन करो. भाई 100 है, 100 में से मैं 10 को इंटरोगेट करूंगा, 10 का इंटरव्यू दूंगा, और उस टाइम पे आई विल गिव अ
कंक्लूजन। सो ये ओपिनियन पोल होता है, ऐसा ही होता है, सही है। वो सारे वोटर को नहीं पूछने जाते, उसमें से किसी को कलेक्ट करते हैं रैंडमली और उसको पूछते हैं। अगर उसने 100 लोगों को पूछा, उसमें से बताया 35% बीजेपी, 40% सपा, तो वो यही बोल देते हैं 35% बीजेपी वोट मिलेगा, 35% सपा को वोट मिलेगा, या दैट्स लाइक, बट इट्स डू नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन। सो ओपिनियन पोल बहुत बार गलत भी होते हैं, सही है, क्योंकि उसका जो डेटा कलेक्शन होगा सैंपल बेस पे किया है वो सही नहीं हुआ होगा। सो दिस आर हाउ यू कैन कलेक्ट द डेटा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि भाई आई एम डूइंग द मैंने डेटा कलेक्ट किया भाई इस प्रॉपर्टी में, इस एरिया में प्रॉपर्टी कितने में सेल आउट हो रही है, क्या ये वाला मशीन जो है वो कितने में बिक रहा है, मिल रहा है, लेथ मशीन कितने में मिल रहा है, या मैंने प्रॉपर्टी डेटा कलेक्ट किया भाई इस एरिया में फ्लैट कितने में सेल आउट हो रहा है। तो मुझे ये डेटा मिला कि भाई 18, 3, 15, 2, 13, ये मैंने सारे कलेक्शंस किए, डेटा कलेक्शंस। फिर क्या करता हूं मैं, ये सारे डेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज कर देता हूं। सो यहाँ मैंने क्या किया, 2, 2, 3, 4, 6, 6 असेंडिंग फॉर्मेट में डेटा को अरेंज कर दिया। इससे क्या मिलता है, मैं उसका क्लास बना दूं भाई 1 से 4 लाख में कितने फ्लैट अवेलेबल है, कितने सेल आउट हुए हैं, तो 4, 5 से 8 लाख में 3, 9 से 12 लाख में 3, 13 से 14 लाख में 2, 17 से 20 लाख में 2। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि भाई ये जो एरिया है वहां पे मैक्सिमम जो सेलेब्रिटी है वो है फ्लैट फ्रॉम 5 लाख टू 8 लाख। इतने रेंज में अगर कोई प्रॉपर्टी है सेल फॉर तो इजीली सेल हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई फ्लैट अवेलेबल है, प्रॉपर्टी अवेलेबल है 17 से 20 लाख में, तो वो बिक पाना थोड़ा मुश्किल है, सही है। सो फिर मैं बोल देता हूँ कि भाई ये क्या हो सकता है। सो भाई इस एरिया में मेजर जो कंसंट्रेशन है वो अपर क्लास, और बाकी का जो कंसंट्रेशन है वो अपर मिडिल क्लास का है, जिसकी फैचिंग कैपेसिटीज है मोर देन एवरेज। ओके, सो कोई भी डेटा को आप जब एनालिसिस करते हो तो लॉट ऑफ कंक्लूजन यू विल अराइव। सो यहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट किया और डेटा कलेक्शन को हमने एक क्लास में, मतलब ये हमने एक क्लास बनाया 1 to 4, 5 to 8, 8 to 9 to 12, 13 to 16, वो क्लास में हमने डेफिनेट किया। सो ये जो हमें डेटा मिला या जो हमें मिली, इट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। भाई 1 से 4 लाख में कोई प्रॉपर्टी सोल्ड आउट होने की चांसेस कितने हैं, तो 4। सेम 5 to 8, 5, 9 to 12, 3, 13 to 16, 4। सो दिस इज ये जो हम करते हैं उससे स्टैटिस्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। सो आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो वो डेटा को एक क्लास विड्थ में आप अरेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। सिंपल है, इसमें कोई ऐसा बड़ा साइंस नहीं है या बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। देन रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, इट इज स्टैटिस्टिक वर्ड। आपके डेटा में, आपका जो डेटा सेट है, ये आपका डेटा सेट है दैट यू कलेक्ट। सो आपके जो डेटा सेट में मैक्स वैल्यू एंड मीन वैल्यू 19, दैट इज अ मैक्स वैल्यू, 2 इज अ मीन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, उसका जो डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड द रेंज। 19 minus 7, तो इस डेटा की जो रेंज है इट इज अ 17। क्लास विड्थ, ओके, क्लास विड्थ का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो क्लास है उसकी विड्थ कितनी है, मतलब 1 से 4 जो बोला आपने,
तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि भाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, या आप कर सकते हो 8 माइनस 4। नॉर्मली ये क्लास विड्थ होगी, तो ये क्लास विड्थ में जो 1 है उसे बोला जाता है लोअर लिमिट, और 4 है दैट इज अ अपर लिमिट। हमने यहाँ बनाया 1 से 4 लाख में 4 अवेलेबल है, जैसे 2 2 2 2 4, ये 4। सो इसकी लोअर लिमिट क्या आएगी 1 लाख, अपर लिमिट क्या है 4 लाख। इसमें लोअर लिमिट क्या है 5 लाख, 5 लाख से जो भी ऊपर हो गया और 8 लाख से जो भी नीचे होगा। सो क्लास विड्थ होती है डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव अपर लिमिट और अ लोअर लिमिट, कुछ नहीं, कंसेक्यूटिव लेना पड़ेगा फिर आपको, एक दूसरे के साथ साथ वाले। देन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ योर क्लास लिमिट। 1 प्लस 4, आपकी क्लास लिमिट है 1, लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 4, 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 योर मिड पॉइंट। सही है। सो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए, सिंपल है, इंजीनियरिंग को थोड़ा समझ में इजी आ जाता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिंपल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल के रिलेशनशिप में, टोटल जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके रिलेशनशिप में किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, जैसे हमने ये हमारे क्लास विड्थ है उसकी फ्रीक्वेंसी बनाई है। ओके, जो लास्ट एग्जांपल था वही वाला है। हमारे जो डेटा टोटल सेट कलेक्शंस था वो 18 है। तो जो क्लास 1 to 4 है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, 4 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल 18, वो है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अगर आप नंबर में डालोगे तो इट इज 0.22, अगर इसको आप परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करोगे तो 22.2%। सेम जो सेकंड क्लास है हमारा 5 to 8, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो सिंपल 5 डिवाइडेड बाय 80। क्लियर? सो नंबर में आएगा 0.277, या परसेंटेज में आएगा वो 27.7%। सेम हमारा जो थर्ड क्लास है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? सो 3 डिवाइडेड बाय 18, सो नंबर में 0.166, और परसेंटेज में लिखोगे तो 16.6%। आपका जो एमसीक्यू आता है कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, तो आप बिने विदाउट द कैलकुलेशंस बताइए, अगर मैं जो ये क्लास की सारे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड की है, अगर मैं उसका सम करूंगा तो क्या आएगा? 1 और 100%। 1 और 100%। 1 सही है, 1 और 100%। अगर आपने नंबर में लिखा है तो 1 होना चाहिए, परसेंटेज में लिखा है तो 100% होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आपने कुछ गलती की है। ओके, सेम एक और फंडा है दैट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी ऐसा कुछ नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सब समझिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके आगे समेशन ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके आगे वाले जो भी है उसका सम। जैसे हमने ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी लास्ट एग्जांपल में, सही है। अब उसकी ही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो भाई इसकी फ्रीक्वेंसी थी 4, इसके आगे कोई क्लास नहीं है, ये पहला ही है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी 4। अब सेकंड जो हमने बनाया था क्लास, इट इज अ 5। इसका मतलब क्या होगा? 5 प्लस उसके कोई आगे क्लास है? हाँ है, उसका वैल्यू 4 है, तो 5 प्लस 4 इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 9। थर्ड की बात करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है? 3,
इसके आगे कोई क्लास है? हाँ, इसके आगे 2 क्लास है, 5 और 4। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 3 + 5 + 4 12। ओके, थर्ड क्लास मतलब नेक्स्ट वाला क्लास ये है 13 to 16, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? इसके आगे कोई क्लासेस है? हाँ है ना, 3 है, 5 है, 4 है, प्लस अर्थ का 4, तो ये सबका मिला के 16। अब सिंगल क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्लास था उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कितनी होनी चाहिए? Total of all. 18. सॉरी 18. Total Total frequency. नहीं, 18 नहीं, मतलब N. लॉजिक क्वेश्चन है। Total of all, sir. टोटल नंबर ऑफ डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड। आपने 20 डेटा कलेक्ट किए हैं तो वो 20 आना चाहिए, सही है। जैसे हमने यहाँ पे 18 डेटा कलेक्ट किए थे, 18 डेटा, और इसी के कैलकुलेशंस है, तो ये 18 आना चाहिए। अगर ये आपका नंबर ऑफ डेटा सेट नहीं आता है तो यू हैव सम मेक मिस्टेक। ये अगेन ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, दैट इज अ लॉजिकल है, सीधा नहीं पूछते मगर, बट इजी भी है, इसमें कुछ है नहीं। ओके, सो किसी को भी डाउट इन frequency distributions, in a relative frequency, and a cumulative frequency? अगर कुछ भी डाउट है तो we can डिस्कस कर सकते हैं। ओके, फिर एक बात आती है बाउंड्री की। ओके, सो बाउंड्रीज क्या है? देखिए यहाँ पे हमने जो लिया है 1 लाख to 4 लाख, 5 लाख to 8 लाख। अब ऐसी कुछ डेटा हो हमारे पास आए कि जैसे 4.5, 4.6, 4.7, 4.2, 4.5, so that we cannot यहाँ पे उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। सो बीच वाले डेटा कहाँ रखने हैं वो हमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये जो सारे क्लासफिट्स है वी कैन मेक इन अ कंटिन्यूअस। सो हम सिंपल क्या करते हैं, 0.5 या जो भी नंबर्स है, मतलब 5 - 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय 2, तो 0.5 आ गया। 5 - 4 डिवाइडेड बाय 2 या 9 - 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.5 आ गया। तो हम क्या करते हैं, 0.5 सब में जोड़ देते हैं, मतलब लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। सो ये हो गई हमारी 0.5 to 5.5, मतलब इंक्लूडिंग 5.5 जो भी डेटा आएगा वो सारे इस क्लास में आएगा। अगर अब कोई डेटा ऐसा है 4.6, सो 4.6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वो 5.5 नहीं आएगा, वो सारे इस क्लास में आ जाएंगे। सो यहाँ पे कोई भी अगर डेसिमल में डेटा हो सकता है तो उसके लिए हमने बाउंड्रीज को कंटिन्यूअस किया, जो कि कोई डेटा मिस ना हो जाए। सो दैट हाउ वी कैन रीअरेंज द बाउंड्रीज using the midpoint of difference between the upper limit of the first class and lower limit of the second class। दोनों का मिड एवरेज करके बाउंड्री हम कंटिन्यूस कर सकेंगे। बट ध्यान रखिएगा, अगर बाउंड्री में यहाँ पे लिखा है 4.5, मतलब 4.5 एंड एनी लोअर वैल्यू, वो क्लास 1 में आएगी। ओके, यहाँ पे एवरीथिंग above the 4.5, everything above the 4.5 and below the or equal to 8.5, सही है। तो हमारा कोई भी डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से गायब नहीं होगा। ओके, सो ये हमारे प्रीलिमिनरी है। अब आती है बात मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए वर्ड ही थोड़ा डिफिकल्ट है, अदरवाइज कुछ नहीं है।
इसका सिंपल मतलब समझने के लिए इट इज अ एवरेज या बीच वाली वैल्यू क्या है, सेंट्रल बीच वाली वैल्यू क्या है, दैट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो हम मीन फाइंड करते हैं, दैट इज अ एवरेज फाइंड करते हैं, बहुत इजी चीज है। ओके, सो फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए स्टेटिस्टिक्स में 3 मेथड्स है। वन इज अ मीन, सेकंड इज अ मोड एंड थर्ड इज अ मीडियन। मीन, मोड, मीडियन। मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, दैट इज अ मीन इटसेल्फ या एवरेज या वेटेड मीन या जियोग्राफिकल मीन या हार्मोनिक मीन। सो मीन का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए मीन में सिंपल, दैट इज अ एवरेज। इसकी एवरेज क्या है, इट्स कॉल्ड द मीन। जैसे हमने डेटा सेट कलेक्ट किया 1 2 3 4 5, इसकी मीन क्या होगी? सो भाई सभी का समेशन प्लस कितने नंबर ऑफ डेटा है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, जो हम एवरेज फाइंड करते हैं बाय 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा 5। सो 15 डिवाइडेड बाय 5 is a 3 is the average, 3 is a mean, simple. Okay. सेकंड है वेटेड एवरेज मीन। देखिए आपके पास एम्प्लॉइज है, ओके, और आप एम्प्लॉइज को सैलरी देते हो। सो ये सैलरी, एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय क्या क्या देते हो, दैट यू कैन नॉट फाइंड बाय द मीन। अगर उससे फाइंड करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि भाई 25,000 सैलरी देता हूं मैं मेरे 2 एम्प्लॉय को, 1000 मतलब 1,00,000 रुपए सैलरी देते हैं मैं किसी 5 एम्प्लॉय को, और 75,000 में सैलरी देता हूं किसी 10 एम्प्लॉय को। तो एवरेजली हाउ मच आई एम पेइंग पर एम्प्लॉय? मेरे एम्प्लॉय 17 एम्प्लॉय है, तो 17 एम्प्लॉय को मैं एवरेज क्या सैलरी पे करना हो, तो वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द वेटेड एवरेज मीन। ओके, सो वेटेड एवरेज में क्या करना पड़ेगा कि आपका जो एम्प्लॉय है सैलरी इनटू एम्प्लॉय कीजिए। okay? जैसे ये किया हमने 25 × 2 प्लस 100 × 5 प्लस 75, और जो आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे 200 है, दैट डिवाइड बाय 2। सर सर प्लीज, सर जो इम्प्लाइज हैं वो तो 10 है ही। हाँ तो सर जो डिवीजन है तो ये डिवाइड, जो आपका सैलरी, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है ना आपको। हाँ जी सर। सो इसका तो जो सैलरी है उससे डिवाइड करेंगे। हाँ, टोटल का। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, ये सारे मल्टीप्लिकेशन किए हमने सिंपली, ये का मल्टीप्लिकेशन करके हम ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या किया था हमने, कुछ एडिशन नहीं किया था, सीधा ऐड कर दिया। यहाँ जो आपके रिलेटिव पैरामीटर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करते हैं। ओके, सो ये हमें नंबर्स मिले 15,500 750 डिवाइडेड बाय 200। सो ये इसका टोटल हुआ 1500 डिवाइडेड बाय 200। सो आपका आंसर आएगा, डेसिमल वैल्यू डिफर है 5.7, सॉरी 7.5। पता सर, 1300 बाय 200 650 होगा, 750 लिखा हुआ है, 650 हो रहा है सर। क्या बोल रहे हो? 1300 डिवाइड बाय 200 650 होगा सर। 750 की बजाय 650 आएगा, 1300 डिवाइडेड बाय तो 200। मैं वही बोला कि भाई यहाँ थोड़ी एरर है, सही है। ठीक है, ठीक है। 6.5 आएगा, ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और 13 डिवाइड बाय 2 करोगे तो इट विल बी 6.5।
Okay, so that is a weighted average mean. नेक्स्ट मीन है इज जियो मीन. जियो मीन का यूज कहाँ पे होता है? जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून. ओके, ये हमें कभी फाइंड करना नहीं होगा, बट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून. अब पता है कि अर्थ एंड मून का डिस्टेंस बदलता रहता है, क्योंकि जो मून अर्थ के अराउंड में रोटेशन करता है वो एक्लिप्स फॉर्म में करता है, तो कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है. सो क्या होता है कि हर एक दिन का हम सन और अर्थ का बीच का डिजर्मेंट करते हैं और उससे एवरेज फाइंड करते हैं. दैट्स कॉल्ड द जियोमेट्रिक. जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया 1 4 7 8 5 और उसका जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है. ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी डेटा कलेक्शंस है उस सभी डेटा का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका nth रूट फाइंड करेंगे. nth रूट मतलब ये हमारे 5 डेटा है, सो 5th रूट फाइंड करेंगे उसका. अगर 10 डेटा होंगे तो 10 डेटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड nth रूट मतलब 1/10 करेंगे. दैट्स विल गिव अ जियो मीन. सभी डेटा का मल्टीप्लिकेशन और उसका nth रूट. अगर डेटा 12 है तो रूट 12. और दूसरा है हार्मोनिक मीन, जिसका एप्लीकेशन कैसे हुआ है? जैसे कोई ट्रांसपोर्टर है और उसकी 10-12 गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां पूरे इंडिया में घूमती रहती है, तो मेरा जो गाड़ी का खर्चा है पेट्रोल में पर किलोमीटर कितना आया? भाई सभी की एवरेज अलग अलग होगी, सभी गाड़ियां ड्यूरिंग द ईयर उसका ट्रैवल भी अलग अलग होगा. सो ऐसे में अगर आपको जियो मीन फाइंड करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, तो यू कैन गो विद द हार्मोनिक मीन. ओके, हार्मोनिक मीन में क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेटा. ओके, सेम ही एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ डेटा, इट इज अ 5, सो 5 डिवाइडेड बाय होल 1 divided by data plus 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 1 divided by data. ओके, जैसे फर्स्ट डेटा है हमारा 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेकंड डेटा है हमारा 4, सो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4. थर्ड डेटा है 7, सो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस फोर्थ डेटा है 8, सो 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5. सो इसका जो आंसर मिलेगा आपको, दैट इज यू विल गेट द हार्मोनिक मीन. ओके, सो नॉर्मली ये दो मीन है हम वैल्यूएशंस में हार्डली यूज करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेशन इन द वैल्यूएशंस, बट पार्ट ऑफ द सिलेबस टाइप्स ऑफ मीन में यू हैव टू रिमेंबर जियोग्राफिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन. ओके, सो नॉर्मली हमारे जो वैल्यूएशन में यूज होता है सिंपली एवरेज मेजरली वी आर वर्किंग. And sometime if you have get some qualitative data, और क्वालिटेटिव डेटा होता है आपको फाइंड कर सकते हो. जैसे हम यहाँ पे आपको ऐसा मिला कि 1 BHK की एवरेज प्राइस 10 लाख मिली, जो आपने फाइंड किया था 10 1 BHK. आपने सर्वे में लिया 15-20 BHK 2 BHK 15 2 BHK और उसकी प्राइस 12 लाख रुपए मिली. आपने सर्वे किया था और उसमें डेटा मिला था कि आपके 25 3 BHK के प्राइस मिले थे और 25 3 BHK एवरेज प्राइस थी ये. सो यूजिंग द वेटेड एवरेज आप सभी का एवरेज निकाल सकते हो. भाई इस एरिया में फ्लैट की एवरेज वैल्यू क्या है? दैट मे बी अ 1 BHK 2 BHK 3 BHK और एनीथिंग. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए सर, हार्मोनिक मीन एक बार और बताइएगा. हार्मोनिक मीन का इक्वेशन क्या है कि n that is the number of data. Just a minute, I am going to the board. क्या करेंगे? Okay, is simple available. n that is a number of data divided by 1 your first data.
plus 1 divided by your second data plus 1 divided by your third data and so on. Okay, this is the equation for the harmonic mean. हमारे एग्जाम्पल में नंबर ऑफ डेटा 5 थे. ओके, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, आई थिंक सो सेकंड डेटा 4 था या जो भी हो, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस थर्ड डेटा, but that is how you can find the harmonic mean. So आप 5 तक के गाइडेशन, सॉरी 1 divided by 7 sir. 1 divided by 7. हाँ, मतलब जो भी कोई डेटा है, ओके, प्लस फोर्थ डेटा क्या था, अगर 1 किसी divided by 8. 8 प्लस 1 divided by 5. सही है. इसका आंसर फाइंड करोगे, दैट इज योर हार्मोनिक मीन. ये हार्मोनिक डेटा कहाँ यूज करते हैं सर हम लोग? उसके लिए एग्जांपल दिया था कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और उस कंपनी का, मतलब उस ये जो ट्रैवल्स की ट्रक थे या कार थे, वो कार की एवरेज माइलेज क्या है. सही है. फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस हार्मोनिक मीन. ठीक है, थैंक यू सर. ओके, सेकंड टाइप्स है सेंट्रल और टेंडेंसी मेजर करने का. इट इज अ मीडियन. ओके, फर्स्ट इट इज अ मीन. मीन के अंदर में 4 मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए. फर्स्ट इज अ मीन, सेकंड इज अ मीडियन. मीडियन इज अ वेरी इजी. यहाँ पे कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है. जो भी डेटा कलेक्ट किए हैं आपने, जो भी डेटा कलेक्ट किया है, अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. और वो डेटा के बीच में जो डेटा है, मिड ऑफ द डेटा, दैट इज योर मीडियन. ओके, जैसे हमारा डेटा सेट है 2 8 10 3 5. what I am doing a 5 number of data set, I am arranging in a ascending order 2 3 5 8. okay, data set of 5. so what is a middle value? 5 is the middle value. इसके बाजू भी 2 डेटा है, इसके बाजू भी 2 डेटा है. so बीच वाला क्या आया? 5. so 5 is a median. there is no calculations. अब आपके डेटा कलेक्शन इवन होंगे, मतलब यहाँ 5 डेटा कलेक्शन है, दैट इज अ ओड, दैट्स व्हाई यू गेट द मिडल वैल्यू. इफ योर डेटा कलेक्शन इज अ इवन नंबर, जैसे आई हैव कलेक्टेड 10 डेटा, क्या करना है, क्लियर का ऑप्शन भी है. आई थिंक सो व्हाइट बोर्ड विजिबल है ना आपको? हेलो, Yes, sir, visible है. क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, कोई बात नहीं. क्या बात कर रहे थे? डेटा इवन हो तो. हाँ, अगर डेटा इवन होता है. पेन चाहिए मुझे. ओके, ओके, जैसे हमारे डेटा है, समझ लो 3 6 2 2 7 8 7 हुए और 3. ओके, दिस आर द डेटा. ये हमारे पास डेटा है, 8 डेटा है. एंड वी आर अरेंजिंग दिस डेटा इनटू द ऑर्डर. सो पहले 1, फिर 2, फिर 3. ओके, 3 2 बार है, सो 3. 3 बार है. ओके, 3 बार लास्ट भी है 3. देन हमारे पास है 6, 7 हमारे पास है 7 और हमारे पास 8. ओके, यहाँ पे आपको कोई मिडल वैल्यू नहीं मिलेगी. जो मिड में आएगा दैट इज अ 3 and 3.
सही है। सो यहाँ पे क्या करना है, एवरेज ऑफ दिस टू नंबर 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अगेन यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। सो 3 इज योर मीडियन। अगर इवन नंबर है, कोई मिड वैल्यू नहीं आती है, सो दो मिड वैल्यू उसका एवरेज, इट इज अ कॉलम मीडियन, इट इज अ कॉलम मीडियन। सही है, तो मीडियन में कोई लॉजिक नहीं है, इट इज इजी। बट कई बार जो क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पे आते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द मोड। ओके, थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने का, सेंट्रल टेंडेंसी थर्ड फाइंड करने का जो है मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड द मोड। मोड भी इजी है, कुछ नहीं है। मोड का मतलब क्या है? वो डेटा जो मैक्सिमम टाइम्स आपके डेटा सेट में आता है। ओके, वो डेटा जो मैक्सिमम आपके डेटा सेट में आता है। सो जस्ट लाइक वी हैव डेटा सेट 2, 8, 3। अब इसमें से कौन सा नंबर मैक्सिमम अपीयर हुआ है? जैसे लेट्स एग्जांपल 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। 8 1 टाइम्स, 2 टाइम्स। 10 only 1 times। 3 1 times, 2 times, only 2 times। 9 only 1 times। 5 only 1 times। सो हमारा जो 2 है वो हमारे डेटा सेट में 4 टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स आया है। सो दैट्स व्हाई हमारा जो मोड है इट इज अ 2। जो मोड है वो हमारा 2 है। ओके, सेम लेट्स टेक एग्जांपल। हमने जो एग्जांपल देके किया था उसका मोड क्या है? ये हमने डेटा सेट कलेक्ट किया है, इसका मोड क्या है? टू एंड सिक्स है। 5 to 8. 4 है सर। हाँ, 2, 6 और 15 दोनों ही। हाँ जी, 2, 2 6 and 15, ये तीनों नंबर 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो इसका नंबर है, मोड है 2, 6 and 15। तीनों नंबर इसके मोड है। सही है। अब क्या सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, आई एम रिप्रेजेंटिंग वन डेटा सेट। ओके, ये डेटा सेट है, इसका मोड क्या है? है ही नहीं। नो मोड। नो मोड। सो कोई नंबर एक नंबर। रिपीटेटिव हो ही नहीं रहा है, तो दिस डेटा सेट हैज अ नो मोड। इसका मतलब आपके पास कोई भी डेटा सेट है तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई मोड हो ही नहीं डेटा सेट में, या ऐसा हो सकता है कि आपका मोड कोई एक सिंगल डिजिट है, जैसे हमने हमारे एग्जांपल में बताया है 2 इज अ मोड। या ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज अ नंबर्स ऑफ मोड, जो हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में थे, दैट इज 2, 5 and 15 या 2, 6 and 16 व्हाटएवर। सो मोड ऐसी चीज है जो नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी में मोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि इसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो सकता। तो मोड की वैल्यू कई बार हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कोई रिपीटेटिव आइटम ही नहीं है। जबकि मीन और मीडियन हमेशा आपको एक फिगर मिलेगी, जबकि मोड में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई फिगर ना मिले, मतलब कोई मोड ना मिले, या एक से ज्यादा मोड मिले। जबकि मीन एंड मीडियन में आपको एक फिगर हमेशा मिलेगी और एक ही मिलेगी। सही है। ओके, एनी क्वेश्चन? मोड, मीडियन और एनीथिंग?
कोई बात नहीं। देन डेविएशन, हाँ सर बोलिए। सर वो क्लास उड़ते हैं ना सर, हाँ उसमें जो 0.5 के नीचे जो वैल्यू आता है वो अभी जो रिजेक्ट किया है। देखिए 0.5 और below 0.5 it will be a in this class. Any value above the 0.5 is will go to the this second class में चली जाएगी आपकी। ओके ओके सर, ओके। deviation, deviation and standard deviation. Okay, so you have collected some data and you have to find the deviation. Deviation मतलब simple है, गलती, ऐसा ही बोलेंगे ना, deviation मतलब गलती। So deviation कैसे find करेंगे? जैसे we have collected data कि भाई asking price of flat in a Indian rupees are given the below 15, 28, 31, 44 for ये सब, and we have find a simple mean, average हमने find किया, arithmetic mean उसे बोलते हैं। So summation of all prices divided by 10, so value मिली 14, sorry 41 minus 5, just a minute हाँ। So we take the data और उसका हमने मीन निकाल दिया, arithmetic mean, that is the average. What is a deviation? Deviation is a nothing but difference between the data entry and mean. Difference between the data and mean. जैसे 41 minus 41.5, so minus 0.5, it is your deviation. Same 38 minus 41.5 minus 3.5, it is a deviation. Same 39 minus 41.5 minus 2.5, it is your deviations. Okay, so deviation means of difference between the data and its mean or arithmetic mean of a data set. Clear? उसके बाद में जो ये क्या इंडिकेट करती है कि भाई अगर आप ये डेटा सेट है और आपने कंक्लूजन ले लिया कि आपने क्या कंक्लूजन लिया है 41, 47 एज ए रिपोर्ट में आपने बता दिया 47 इज माय वैल्यू। सो आपकी गलती डेविएशन क्या हो सकता है? तो आपकी गलती हो सकती है 5.5 प्लस में, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने ज्यादा दे दिए और आप देते हैं अगर 58, तो आपकी गलती क्या हो सकती है? तो एवरेज से आपने कम दे दिया माइनस। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट डिफाइन है कि कितने परसेंटेज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का क्या तरीका है? इट इज फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डेविएशंस। हमने सारे डेविएशंस फाइंड कर दिए। सेकंड स्टेप्स टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस, सभी का स्क्वायर कर दीजिए। इट इज अ स्क्वायर ऑफ योर डेविएशंस। ओके, square of a 0.5 is a 0.25. Square of the minus 3.5 is a 12.25. Square of a minus 2.5 is a 6.25. सभी का हमने स्क्वायर कर दिया। Then make variance. Variance क्या होगा कि भाई आपका जो भी डेटा कलेक्शन है उसका स्क्वायर जो आपने किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर n। ओके, सो आपका जो स्क्वायर हमने यहाँ पे बना दिया, सभी का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर का
मीन निकालिए, दैट इज अ टोटल डिवाइड बाय नंबर। सो आपका नंबर आया 8.85, दैट इज अ वेरिएंस। और इस वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर ये स्क्वायर रूट निकालते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 8.85, it is a 2.97, it is your standard deviations. ये स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या बताता है? इफ यू आर टेकिंग अ कंक्लूजन, आपने ये डेटा सेट कलेक्ट किए हैं और आपने कंक्लूजन दे दिया बेस्ड ऑन द मीन 4.5, सो आपका जो मीन है 4.5, उसमें प्लस और माइनस 2.97 की गलती हो सकती है। सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स अ रेंज ऑफ द एरर प्लस और माइनस में। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है, इट इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएंस। अगर वेरिएंस मेरा 9 है, ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, पर आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। इफ माय वेरिएंस इज अ 9, इफ माय वेरिएंस इज अ 9, तो व्हाट वुड बी अ स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा? 3। या उल्टा पूछते हैं, इफ माय स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ 4, तो मेरा वेरिएंस क्या होगा? 16 स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस 16 होगा। सही है, तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको ये रिलेशनशिप याद करनी होगी। ये सारे फॉर्मूलाज और ये मतलब कैलकुलेशन आपको एग्जाम में एमसीक्यू में नहीं आने वाले सही में, बट समझ लीजिए उसके बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। आप समझे है कि नहीं, आप डेविएशन को समझे है कि नहीं, आप वेरिएंस को समझे है कि नहीं, या आप स्टैंडर्ड डेविएशन को समझे है कि नहीं। सही है, अब मैं पूछूं वेरिएंस का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय द वेरिएंस? आपको बोलना है कि वेरिएंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? चांसेस ऑफ एरर। मीन ऑफ स्क्वायर बोला है? हाँ, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन। ओके, सो भाई आपका जो वेरिएंस है, टोटल अपॉन नंबर। हाँ, जो डेविएशन का स्क्वायर है उसका मीन समेशन करोगे। डेविएशन क्या है सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो वो तो Error. डेफिनेशन ही है कि डेटा माइनस मीन। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं भाई, डेविएशन का मतलब क्या है, वेरिएंस का मतलब क्या है, एसडी का मतलब क्या है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, या जैसे पूछा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ 3, व्हाट विल बी अ वेरिएंस। तो ये पता होगा तो इजीली आप कैच कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज अ डिस्पर्जन। हाँ सर वन बोलिए। स्मॉल डाउट है सर। हाँ बोलिए जैसे ये वेरिएन और एसडी का रेशियो है, तो इन एग्जाम ये सिंपल टाइप ही आएगा ना, जिसको हम लोग मतलब वर्बली ही कैन काउंट? हाँ, वर्बली कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो यू हैव अ कैलकुलेटर एंड यू हैव एक्सेल शीट। राइट सर। बट आज तक तो सिंपल ही पूछे हैं। ठीक सर। अगर ऐसा कोई डिजिट में पूछ लिया देन ऑल्सो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप इजीली कर सकते हो। सही है। डिस्पर्जन, सिंपल मीनिंग बताइए, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग डिस्पर्जन, फैलना सर। फैला हुआ। फैलना। तो डिस्पर्जन का मीनिंग भी यहीं पे यही है, फैलना, फैलाव। किसका फैलाव? ऑफ योर डेटा सेट। आपने जो भी डेटा सेट किए हैं उसका डिस्पर्जन क्या है? जो जैसे हमने आगे बताया था, रेंज, मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा। ओके, सो आपका डेटा कैसे फैला हुआ है, दैट्स अ कॉल अ डिस्पर्जन। व्हेन द डेटा हैज अ लार्ज वैल्यू, the value in a set widely scattered. When it is a small item, it is a tightly clustered. तो बताइए कि डेटा सेट आपका कैसा होना चाहिए, वाइडली स्कैटर्ड या टाइटली क्लस्टर्ड?
which data will give you a more accurate result? वाइडली स्कैटर्ड होना चाहिए। सही है। किसी का कोई और ओपिनियन है? टाइटली क्लस्टर्ड होना चाहिए। अब दो ही है तो ही बचा ना। सही है। तो नॉर्मली आपका जो डेटा सेट होना चाहिए टाइटली क्लस्टर्ड होना चाहिए, तो अभी आपका जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, वो मोर एक्यूरेट रादर देन अ स्कैटर्ड, वाइडली स्कैटर्ड। ओके, जैसे हमने एक एग्जांपल में दिया था, सही है। तो हमारा डेटा सेट था ये वाला 2 2 2 5 5 5 11 9, तो 6 19 और 5, इसका मीन फाइंड करके आप वैल्यू निकालते हो, क्योंकि 2 2 19 है। अगर इसी डेटा रेंज की रेंज होती 15 to 19, मतलब मिनिमम डेटा होता 15 और मैक्सिमम डेटा 19, और ये डेटा सेट है जो मिनिमम डेटा है 2 और मैक्सिमम डेटा है 19, तो बताइए किससे रिजल्ट मोर एक्यूरेट आता, जिसकी रेंज 2 to 9 है या जिसकी रेंज 15 to 19 है? सर 15 to 19 आएगा ना? 9 में आएगा। 15 to 19 वो डेटा होगा, वो सारे जो हमने 18 डेटा कलेक्शन किया है था, वो 15 to 19 के बीच में होगा, तो मोर एक्यूरेट कंक्लूजन मिलता है रादर देन 2 to 19। मतलब जितनी बड़ी रेंज उतनी जो आपका स्टैटिस्टिक कैलकुलेशंस है उसमें डेविएशन होने का, स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होने का चांसेस ज्यादा है। तो सिंपली the spread of the data set can be classified by the descriptant, ये जो पढ़ा हमने स्टैटिस्टिक, include the variance, standard deviation and interquartile। so जितना डेटा सेट वाइड स्प्रेड ओवर, आपका डिस्पर्सन ज्यादा, उतनी एरर ज्यादा, उतना वेरिएंस ज्यादा, उतना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा। क्लियर? सो यहाँ पे आपको दिखाया गया है 3 डेटा सेट। सो आपका डेटा सेट बताइए कैसा होना चाहिए, ए जैसा, बी जैसा, सी जैसा? ए जैसा सर, ए जैसा होना चाहिए। अगर ए आपका जैसा डेटा होना चाहिए। सेट ए जैसा है, नॉट अ मोर अ वाइडली स्प्रेड ओवर, तो आपका स्टैटिस्टिक बेस्ड कंक्लूजन होगा, दैट विल बी अ मोर राइट। अगर आपका डेटा सेट सी जैसा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बढ़ जाएगा, बट आप प्रूव कर सकते हो भाई ये सारे मेरे न्यूमेरिक्स है और ये सही है, बट आपकी जो एरर है वो ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होने हैं। सो डिस्पर्जन, मेजर स्टैटिस्टिकली डिस्पर्जन ऑफ अ non-negative real numbers, that is a zero data same and increase the become a more diverse। okay, so ये dispersion। ऐसा ही फंडा है स्क्रूनेस का। अगर मैं सिंपली आपको स्क्रूनेस समझाऊं तो किस तरफ ढलान है, किस तरफ ढलान है। ओके, अब ये हमारे डिस्पर्जन है, बताइए ये जो है ए की ढलान किस तरफ है? लेफ्ट है, राइट, कहीं राइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका कोई भी किसी भी तरफ, लेफ्ट या राइट की तरफ कोई भी ढलान नहीं है, सही है, कहीं किसी एक तरफ ये झुका हुआ नहीं है। स्क्रूनेस सोर्स is a measure extent to which probability disturbance of a real value variable is a lean or band in a one side of the mean। किस तरफ झुका हुआ है, सही है। सो स्क्रूनेस, अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब मीन मोड मीडियन आपका एक ही तरफ होगा, सही है। बट अगर आपके डेटा स्कैटर्ड है तो मे बी आपका लेफ्ट साइड स्क्रू लेफ्ट और स्क्रू राइट हो सकता है, स्क्रू लेफ्ट और स्क्रू राइट हो सकता है। और कई बार क्वेश्चंस आते हैं भाई स्क्रू लेफ्ट में आपकी मोड की पोजीशन क्या होगी? सो मोड विल बी अ राइट साइड ऑफ मीन एंड मीडियन, सही है। और कई बार पूछा जाएगा कि मीन पोजीशन क्या होती है स्क्रूनेस में,
तो मीन इज अ राइट साइड ऑफ मोड एंड मीडियन। देखिए मीडियन आपको बीच में ही होगा, बट जो मीन एंड मीडियन है वो चेंज होते हैं। ओके, तो सिंपल में आपको याद रखना है, तो आपका जो राइट हैंड है, ओके, इट शोज द स्क्रूनेट राइज। अगर राइट हैंड की फिंगर्स को आप स्क्रूनेस पे रखोगे तो पता चलेगा कि पहले कम आएगी, फिर जो हमारी फिंगर है बड़ी आएगी, फिर फिंगर्स की हाइट रिड्यूस हो जाएगी। तो इट शोज द, हमारी राइट साइड हैंड है, इट शोज द स्क्रू राइट या पॉजिटिव, और हमारी जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स है, इट शोज द स्क्रूनेस नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। वी आर नॉट गोइंग इन द न्यूमेरिक्स, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बट स्क्रूनेस के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द मीन, मोड एंड मीडियन। ओके, So can you please explain this again? स्क्रूनेस का मतलब डेटा किस तरफ बैंड हुआ है, किस तरफ मैक्सिमम डेटा है। मोड क्या बताता था, नंबर ऑफ मैक्सिमम अकरेंस। देखिए जहां जहां मोड है वहां वहां हाइट है। सही है, मतलब इस डेटा सेट में हमारे ज्यादातर डेटा इस रीजन में है। सही है, और इसी में हमारे ज्यादातर डेटा इस रीजन में है। जबकि आप यहाँ देखिए जहाँ पे मीन मोडियन सेम है, वहां पे कोई भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई एक तरफ ज्यादा डेटा नहीं है, कोई एक तरफ कम डेटा नहीं है। सही है, बट ऐसा होता नहीं है। मे बी वी गेट द स्क्रू लेफ्ट और मे वी गेट द स्क्रू राइट। सो यहाँ पे पता चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू वाले जो डेटा है, इट इज अ, तो आगे आ जाएंगे पहले, और इस तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू वाले डेटा है वो इसके लेफ्ट साइड में आएंगे। मतलब हम सोचेंगे तो हमारी उल्टी साइड में आएंगे। सो इस डेटा में मैक्सिमम डेटा यहाँ पे होंगे, जहाँ पे मोड होगा, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस। ओके, सर इसमें मीन होता था एवरेज वैल्यू, मोड होता था नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑरेंज स्केल, और मीडियन क्या था एग्जैक्टली? आप डेटा सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, और बीच में जो वैल्यू आएगी दैट इज योर असेंडिंग, दैट इज मीडियन। दैट इज अ मीडियन। अच्छा, और मीडियन वाला जो था वो था मीडियन। और ओके ओके, इसमें भी वी कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ, बट क्या करना था मुझे, कि मैं आपको दिखाता हूं, बट डू नॉट स्पेंड दैट मच टाइम। I think so Excel is visible to all. Hello, Excel is visible to all? Yes, sir. Visible, sir. Okay, so ये जो डेटा है उसका मैंने स्क्रूनेस फाइंड किया। देखिए ये डेटा है, 100 कोई डेटा है समझ लीजिए। सही है, सो मैंने उसकी रेंज बनाई 0 to 50,000 एंड अनदर। सो ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। okay? अब इससे मैं मेरा स्क्रूनेस दिखाता हूं, तो बताइए इस स्क्रूनेस से आपको क्या पता चलता है। ये तो मेरा डेटा पॉजिटिव स्क्रूनेस है, और पहले मोड आएगा, स्क्रूनेस राइट है। राइट है सर, स्क्रूनेस राइट है। सॉरी, राइट है। तो स्क्रू राइट वो सब सही है, बट इंटरप्रेटेड क्या है इसका मतलब, जो मैडम का क्वेश्चन था। पहले मोड आएगा, फिर मीडियन, फिर मीन आएगा।
अरे वो थियोरिटी है, आपको मैंने बता भी दिया, बट इसका इंटरप्रिटेशन, अगर मेरे पास ये ग्राफ है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? दैट इज अ ग्राफ ऑफ द फी चार्ज बाय द मी। मैंने 100 असाइनमेंट किए हैं और 100 असाइनमेंट की फीस का मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया और मुझे ये ग्राफ मिला। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम डेटा लोअर वैल्यू पे है। हाँ वही बात है, बट देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मैक्सिमम असाइनमेंट है उसकी मेरी फी जो मिली है वो लोअर है, और जो बहुत कम फी मिली है मुझे, मतलब जहां फी ज्यादा मिली है वहां पे नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कम है मेरे। ओके, सो मैक्सिमम डेटा किस तरफ है मेरा? इट शोज द स्क्रूनेस। देखिए यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी पता चलेगी। सही है, 100 से 50 में मैंने एक किए है इसमें 90 किए हैं। अगर मैं इसका क्यूमुलेटिव निकालता हूँ प्लस so 15 ओके मेरे 73% केसेस की जो फीस है इट इज अ लोअर साइड, 0 से 1 लाख रुपए में, और बाकी की जो मेरी फीस है मतलब बाकी के 27% वो लोअर है। जैसे मेरी फीस बढ़ती है मेरे असाइनमेंट्स कम होते रहे। तो ये ग्राफ से मुझे सीधा ही पता चल जाता है कि भाई मेरे 1 लाख तक के असाइनमेंट जो है दैट इज माय अर्निंग, जिससे मैं मैक्सिमम कमाता हूँ। बाकी के फीस वाले जहां ज्यादा फीस अवेलेबल है वो मेरे असाइनमेंट्स कम है। तो स्क्रूनेस शोज इन विच मैक्सिमम डेटा इज देयर। तो यहाँ पे सिंपली बात है, यहाँ पीक मेरा यहाँ मिल जाता है तो मैक्सिमम डेटा मेरे इस रीजन में फैला हुए है। मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट इस रीजन में हुए हैं, और जैसे जैसे मेरी फी बढ़ती है मेरे नंबर ऑफ असाइनमेंट मतलब वहां पर डेटा कम है। सही है, सो दैट्स कॉल्ड, मतलब ये डेटा किस तरफ फैले हुए इसका एक थोड़ा एग्जांपल है। ओके, वी आर नॉट गोइंग मोर, अगर समझना है तो वी कैन डू इन एक्स्ट्रा टाइम, बट अभी वी आर गोइंग वन शॉर्ट ब्रेक फॉर 10 मिनट्स ओनली। ओके, सो शॉर्ट के बाद में हम वी विल डिस्कस मोर। हाँ हाँ बंसल जी। यस सर। हाँ सर, 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक होगा, सब 10 मिनट का। Right, sir. So friends, it is 11:25 now. We will rejoin at 11:35 sharp. At 11:35, please stay with us till then. You can switch off your screen for a short while.